Hello guys, so in our last class we have discussed about the input function, how we can get entry from the end user. So let's move ahead with a different topic, which is the user defined function. As we all know, and we have gone through with several system defined functions which were already created by Python, like print function, and the append, add something, delete something, and you need to get the length of a particular record, and number of system defined function we have already explored. So now in case if it is required to create your own function as per your requirement, so Python has given an option to create your own function as well. So we divide function into two parts. One is the system defined, which Python has already created. For example, the print function, type function, and so on. And the second part is user defined function. User defined function means which you create. And it's up to you what type of function you want to create, you can create those. But we have to follow some rules and regulation for creating a user defined function. So the topic for today is to create user defined function. हम user defined function जब create करते हैं तो that should be related to a requirement. Let's say we need to add two columns or two particular variable or two records or multiply or n number of operation you want to perform to a particular variable or particular, in case you're working for a tabular data, which we'll discuss further while moving ahead with pandas. So here in core Python we'll create some user defined function, but first we need to check how to create user defined function. आप अगर यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करते हैं, सो वी हैव टू ऑप्शन अवेलेबल. वन इज यूजिंग डेफ, सेकेंड इज यूजिंग लैम्डा. आप दो तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. आप डेफ से कर सकते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन आप लैम्डा से भी क्रिएट कर सकते हैं. नाउ लेट्स take some examples to see what is the difference between the function which you have created from def and the function which you have created from lambda. So def से पहले हम function बनाएंगे and that is using def. Let's say I want to create a function which is adding two variables, the value of two variables. ठीक है. So जब भी आप def से function बनाना शुरू करेंगे, the starting is from a keyword def and then the name of your function. आप अपने function का नाम क्या रखना चाहते हैं, and it is recommended to give the same name as per the functionality of that particular function. ऐसा नहीं है कि function में आप क्या कर रहे हैं, दो variables को add कर रहे हैं and आपने उस function का नाम रख दिया multiplication or anything else which is not related to the functionality of that particular function. So although ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, आप अपने नाम से फंक्शन बना सकते हैं, but it is recommended to give the name related to the functionality of that function so that you can understand in case you have created the function and you want to use it somewhere and आपको समझ ही नहीं आता है कि आपने किस पर्पस के लिए फंक्शन बनाया था. Fine. So let's say you're adding two variables. So हमने फंक्शन का नाम दिया sum var. You can use any name. That's not a fixed keyword. Def is a fixed keyword because you are creating a function using def. Sum underscore var is the name of function. You can use any name. Then small parenthesis. अब ये small parenthesis के अंदर जो हम पास करते हैं वो हमारी होती हैं arguments. Arguments में आप variables देंगे कि आप कितने वेरिएबल का यूज करके सम अंडरस्कोर वेर नाम के फंक्शन को बनाना चाहते हैं. सो इट्स अप टू यू, आप कितने वेरिएबल यूज करना चाहते हैं. डेफ फंक्शन में आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट. आप दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं, चार यूज कर सकते हैं, पांच यूज कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. सो वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स हियर. लेट्स से number 1 and number 2 and the column. That's a part of syntax and you simply enter it. Indentations वो खुद ले लेगा. Then here we call it the
आर्ग्यूमेंट आपने पास कर दिया नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड दिस पार्ट इज द एक्सप्रेशन। मीन्स जब आप सम अंडरस्कोर वेर नाम का जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें आप दो वेरिएबल यूज करेंगे num1 एंड num2। हाउ यू वांट टू परफॉर्म, हाउ यू वांट टू मैनिपुलेट यूजिंग दीज वेरिएबल्स, आप इस फंक्शन को बनाने के लिए इन दो वेरिएबल को कैसे यूज कर रहे हैं, दैट यू हैव टू डिफाइन इन अ expression. So let's say I am adding two variables, so let's say num equals to num1 plus num2। ये num मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया है वेयर आई एम स्टोरिंग num1 plus num2। फाइनल आपको आउटपुट आपका कहाँ स्टोर हुआ, num1 में। सो वी विल बी यूजिंग अ रिटर्न, रिटर्न वर्क्स लाइक अ प्रिंट हियर एंड रिटर्न आपका क्या होगा, num, जो आपका फाइनल आउटपुट स्टोर हुआ है वो num में हुआ। यू कैन यूज एनी नेम, num ऐसा फिक्स कीवर्ड नहीं है। सो डेफ से आप शुरू करते हैं, फंक्शन का नाम होगा स्मॉल पैरेंथेसिस एंड द आर्ग्यूमेंट्स, आप कितने वेरिएबल्स का यूज करके फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, दिस पार्ट वी कॉल दैट आर्ग्यूमेंट एंड दिस पार्ट वी कॉल दैट अ एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन। सो आर्ग्यूमेंट भी मल्टीपल हो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी मल्टीपल हो सकते हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन यूजिंग डेफ, राइट। सो फाइनल आउटपुट आपने num में स्टोर कराया, यू रन इट, फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड। अब फंक्शन जब आपका क्रिएट हो गया तो आपको उसको कॉल कराना होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेट्स से प्रिंट टाइप, सो वी हैव टू कॉल दैट व्हाइल वी आर यूजिंग इट। सो सेम वेयर द सेम थिंग विल बी हैपनिंग हियर एज वेल। आप सम अंडरस्कोर वेयर नाम का फंक्शन कॉल कराएंगे। इस फंक्शन को आपने कितने आर्ग्यूमेंट पास किए थे, दो आर्ग्यूमेंट, तो लेट्स से दोनों की वैल्यू आप यहाँ डायरेक्टली पास कर देते हैं। सो वंस यू रन इट यू विल गेट द आउटपुट। ये जो आउटपुट आपका जनरेट हुआ है बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन व्हिच यू हैव गिवन व्हाइल क्रिएटिंग दिस फंक्शन, राइट। आप इसी फंक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। लेट्स से मैं सम अंडरस्कोर वेयर वन नाम से इस फंक्शन को बना रही हूँ एंड आई एम यूजिंग टू सम मोर वेरिएबल्स एज वेल। आई एम जस्ट गिविंग स्मॉल नेम, राइट, ए बी सी एंड डी, राइट। आप चार वेरिएबल्स यहाँ यूज कर रहे हैं, कॉलन। अब यहाँ आपके एक्सप्रेशन है, यू कैन यूज मल्टीपल एक्सप्रेशन। तो लेट्स से नम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई डी, ऐसा कुछ कर सकती हूँ। फाइनल आउटपुट आपका नम में स्टोर हुआ तो मैं यहाँ पे num1 एक और वेरिएबल यूज कर रही हूँ एंड देन num प्लस 2 कर रही हूँ। आई कैन डू दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेशन एज वेल। वो टोटली आपके फंक्शन पे रिलेट करेगा। एज मच एज एक्सप्रेशन यू वांट टू ऐड यू कैन, दैट्स अप टू यू। num2 आप ले रहे हैं तो num2 में आपने फिर num1 के साथ फाइनल आउटपुट पहले आपका num1 में स्टोर हुआ था, सो हियर num1 एंड प्लस 2 या 4 आप जो भी करना चाहते हैं, दैट्स व्हाट यू डिड। फाइनल आउटपुट आपने num2 में स्टोर किया, तो रिटर्न आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, num2। सो ये फंक्शन बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना है दैट आई वांट टू से यू, आई वांट टू मेक श्योर कि आप कितने भी वेरिएबल, कितने भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग अ फंक्शन। यहाँ पे हमने चार वेरिएबल यूज किए, ए बी सी डी। आप इनको किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन में डाल सकते हैं, दैट डजंट मेक्स एनी प्रॉब्लम एट योर एंड। आपने इन चारों वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन किया, आपने नम में स्टोर किया, देन आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया num1, क्योंकि आप num में प्लस 2 ऐड करके num1 में स्टोर करा रहे हैं। देन आपका जो आउटपुट num1 में स्टोर हुआ था उसमें आपने फिर से 4 ऐड कराया एंड देन आपने उसे num2 में स्टोर किया और फाइनल आउटपुट आपका num2 में कॉल करा लिया। सो अब जब आप इस फंक्शन को कॉल कराएंगे सम अंडरस्कोर वेयर वन, तो आपको आर्ग्यूमेंट कितने पास करने पड़ेंगे, 4। तो चारों की वैल्यू आप जो भी, आई एम जस्ट यूजिंग द रैंडम वैल्यूज। सो वंस यू रन इट, सो यू सी 4 वेरिएबल में पहले उसने ये वाला मैनिपुलेशन किया, देन फिर यहाँ आया, फिर ये वाला मैनिपुलेशन, फाइनल आउटपुट num2 में स्टोर हुआ। बेस्ड ऑन दैट दिस 6 हैज बीन given you as an output. So when you are creating a function using def, तो आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब इसी में देखिए लास्ट क्लास में हमने जैसे इनपुट फंक्शन यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस फंक्शन, ये जो आपका सम अंडरस्कोर वेर है, इसमें num1 और num2 को आप एंड यूजर से लेना चाहते हैं, यू वांट गेट दैट एंट्री फ्रॉम द एंड यूजर। तो इस फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देखिए इसे कुछ ऐसा लिखेंगे आप, num1 में आप क्योंकि न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इंट यूज करेंगे आउटसाइड द इनपुट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिस्प्ले मैसेज होगा, प्लीज एंटर योर नंबर।
ठीक है, ये आप मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं। एंड देन सेकेंड आपका क्या होगा, num2 में फिर आप, क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो आउटसाइड द इनपुट फंक्शन वी हैव टू कॉल इंटीजर, एंड देन फिर आपने सेकेंड नंबर एंटर कराया एंड दैट इज योर एंटर सेकेंड नंबर, दिस इज योर सेकेंड इनपुट। अब ये जो इनपुट है आपका, इन दोनों वेरिएबल को आप इस फंक्शन में यूज कर रहे हो, तो ये सिंपली जो दोनों वेरिएबल आपके रन होंगे कैसे होंगे, पहला नंबर एंटर करा लेगा, दूसरा नंबर एंटर करा लेगा, दैट्स इट। तो अभी इसी प्रोग्राम में फर्दर हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफ से फंक्शन क्रिएट किया, हम इसका कुछ और नाम रख देते हैं, लेट्स से एडवेर, ठीक है। एंड ये दोनों जो हम एंड यूजर से ले रहे हैं वो दोनों हमने यहाँ पास करा दिए वेरिएबल, कॉलन, एंड देन आपका नम नाम से एक नया वेरिएबल बनाया, नंबर नाम से बना लेते हैं, एंड आपने num1 प्लस num2 कर दिया, ठीक है। अब रिटर्न में आपका नंबर विल बी देयर, फाइनल आउटपुट आपका नंबर में। तो अब ये आपका फंक्शन बन गया। अब देखिए जब आप इसे रन करेंगे तो ये दोनों नंबर तो एंटर करा लेगा, लेकिन आगे आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है आपको? आउटपुट इसलिए नहीं देगा क्योंकि फंक्शन तो यू हैव क्रिएटेड, एड वेयर फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड, बट यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन एज वेल। तो ये फंक्शन जो आप कॉल कराएंगे तो आप कैसे, आपका जो चेंजेस होंगे वो सिंटैक्स में विल बी समथिंग लाइक दिस, नम। तो अभी ये जो num1 और num2 है, जो पहले आप मैन्युअली पास कर रहे थे जिनकी वैल्यू, ये वैल्यू हम एंड यूजर से एंटर करा देंगे। तो अभी वी आर गुड टू गो विद दिस कोड। पहले आप नंबर एंटर कराएंगे, फिर दूसरा नंबर एंटर कराया एंड यू गेट दी आउटपुट। व्हाट यू वर डूइंग विद दिस फंक्शन, यू आर एडिंग टू दीज टू वैल्यूज। तो ये कोई भी नंबर आप रन कर सकते हैं, यू आर पासिंग any great number to that as well and you will get the output. So this function has been created. आपने इसको थोड़ा सा ऑटोमेट कर लिया। अगर आप इस फंक्शन को ऐसे num1 num2 की वैल्यू पास करा के कॉल कराना चाहते हो तो आप ऐसे भी कॉल करा सकते हो, एड वेयर num1 num2 की आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए and you get the output here too. So that's totally up to you how you are getting the value, and this is the output which you have created from this part, right? So def से जब भी फंक्शन बनेगा आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, आप फाइनल आउटपुट रिटर्न में स्टोर कराएंगे, वी हैव सम अदर ऑप्शंस एज वेल। आप उन दो जो भी कोई फंक्शन बना रहे हैं, लेट्स से यू वांट टू गेट दैट एंट्री फ्रॉम द एंड यूजर, सो यू कैन गेट दैट एंट्री फ्रॉम एंड यूजर एज वेल, लाइक वी डिड हियर इन दिस प्रोग्राम। So this is how we create a very simple def function using def. So in next class we will be discussing about the second option, how to create the function using lambda, and we'll talk about the difference between def and lambda. Fine guys, thanks for the day.